Good morning, students. I welcome you all in this your first class, and I hope that you all must be fine at your respective places. Before starting with our syllabus, let me tell you firstly about what are you going to study in your third year chemistry, right? So there will be two papers, that is the discipline specific elective courses called DSE, discipline specific elective courses. We have to study two papers of discipline specific elective courses in chemistry. The first one is that I told you, that is the Chem 301 paper, which is mainly organic chemistry, and it consists of topics like polynuclear hydrocarbons, heterocyclic compounds, and spectroscopy. The other paper you are going to study under discipline specific elective course is the inorganic chemistry, and in that we will study about the chemistry of transition and inner transition elements, coordination chemistry, organometallics, acids and bases. Then there will be two skill courses for the major chemistry student that I will tell them separately. So without wasting time, we are starting with organic chemistry, that is the Chem 301 paper. And in Chem 301, the first section, in the first section we have the topic that is your polynuclear hydrocarbons, right? So polynuclear, as is clear from the name, that is poly means many. So polynuclear hydrocarbons are the hydrocarbons which have more than वन एरोमेटिक रिंग इन देयर मॉलिक्यूल, राइट? इनके पास ज़्यादा, एक से ज़्यादा एरोमेटिक रिंग्स हैं, दे आर कॉल्ड एज पॉली न्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स. नाउ these hydrocarbons are also known as, since they are aromatic in nature, so they are also termed as polynuclear aromatic hydrocarbon. They are also termed as polynuclear aromatic hydrocarbon, PAH, as they have more than one aromatic ring in their molecules, right? Now polynuclear hydrocarbons, since they have more than one aromatic nucleus, they are called polyaromatic hydrocarbons, polynuclear aromatic hydrocarbon. So we can classify them into two categories. They are of two types. In the first type, these are the polynuclear aromatic hydrocarbons in which they have aromatic rings, but those rings are isolated, that is they are either joined through a single bond or through some other कार्बन एटम, राइट? कैसे हैं ये पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन? जहां पर एरोमेटिक रिंग्स जो है वो सेपरेट है, और जॉइंट कैसे हुए हैं? दैट इज आइदर थ्रू उनके बीच में कोई सिंगल बॉन्ड है, या दे आर जॉइंट थ्रू सम कार्बन एटम, राइट? सो यू कैन सी हियर एग्जांपल, आई हैव रिटन हियर एग्जांपल. This is a kind of polynuclear hydrocarbon. Here there are two benzene rings. They have been kept isolated, but they are joined through this single bond. This is a single bond which is joining these two polynuclear hydrocarbons, right? So it is called biphenyl or diphenyl, as you know. Then the one category is that they are joined through single bond, or the other possibility is that these two rings, they may be joined through some carbon atom. So here this is the second example. You can see here the two aromatic rings, they are joined through this CH2 group, and it is also a category of polynuclear hydrocarbon, diphenyl methane. This is the example of first category of polynuclear aromatic hydrocarbon, that is where the aromatic rings are isolated, that is they are joined either through a single bond or through other carbon atom, right? Then second category comes where these are the polynuclear hydrocarbons in which the aromatic rings, they are fused by sharing a pair of orthocarbon atom. Means the aromatic rings are not isolated, but they are fused or condensed where they are sharing a pair of orthocarbon atom. So we can see here example, the first one, where the two benzene rings, they are fused at the orthocarbon atom. They are joined at the ortho, they are sharing the ऑर्थोकार्बन एटम्स, राइट? इलेक्ट्रॉन्स जो ऑर्थोकार्बन एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों रिंग जो है वो शेयर कर रहे हैं, ठीक है? सो इस तरह के कंपाउंड्स को हम बोलते हैं फ्यूज्ड और कंडेंस्ड हाइड्रोकार्बन. ना ये जो इनका जो फ्यूजन है ये लिनियरली भी हो सकता है या एंगुलरली भी हो सकता है. लिनियर मीन्स कि सारे जो है रिंग्स जो है एक ही प्लेन में
फ्यूज होके इस तरह के कंपाउंड बना रहे हैं। जैसे हमारा फर्स्ट एग्जांपल है नेप्थलीन है, लीनियर वे में ये कंडेंस हो रहा है, फ्यूज हो रहा है। एंथ्रासिन आ गया जहां पर आपके जो नंबर ऑफ एरोमेटिक रिंग है वो 3 हो गए हैं, बट फ्यूज जो है ये लीनियर वे में हो रहे हैं। और अगर किसी पर्टिकुलर एंगल पे वो फ्यूज हो रहे हैं, देन दिस इज दी दैट एग्जाम्पल, दैट इज फिनेंथ्रीन, वेयर यू कैन सी कि ये जो फर्स्ट दो रिंग है ये तो फ्यूज लीनियरली हो रहे हैं, बट जो थर्ड रिंग है वो सेकेंड रिंग के साथ जो है एक पर्टिकुलर एंगल पर जो है फ्यूज हो रहा है। सो इट मीन्स दे कैन बी फ्यूज्ड आइदर लीनियरली और दे कैन बी फ्यूज्ड एंगुलरली, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड फ्यूज्ड और द condensed ring compounds, ठीक है, और the polynuclear hydrocarbon, both are the example of polynuclear hydrocarbon, but out of these two which you are going to study in your third year, the two kind of polynuclear aromatic hydrocarbon are this category, that is the second category. These are the true polynuclear aromatic hydrocarbon, and they have more important than the aromatic hydrocarbon of the first category, right? सो आपके सिलेबस में ये जो सेकंड कैटेगरी वाले पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन है वो हैं आपके सिलेबस में, तो हम इनको स्टडी करेंगे, राइट। सो फर्स्ट जो पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन जिसको हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज नेप्थलीन, राइट। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C10H8 और इसका जो स्ट्रक्चर है वो आपके सामने है। 2 बेंजीनिंग फ्यूज्ड है, C10 है आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, राइट। कार्बन 10 है और हाइड्रोजन जो है जहां पर फ्यूजन हो रहा है ऑर्थो कार्बन एटम पे वहां पर हाइड्रोजन नहीं है, बाकी सब जगह हाइड्रोजन है। तो कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, 1 2 पे हाइड्रोजन, 3 पे हाइड्रोजन, 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे और 8 पे। 9 और 10 जो पोजीशन है यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं होगा, राइट। सो इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C10H8, right? So it consists of 2 benzene rings fused together through their ortho position, and it is the simplest one of the फ्यूज्ड पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। जो भी आपके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है उसमें जो आपका नेप्थलीन है वो सिंपलेस्ट वन है, ठीक है। सिंपल 2 बेंजीन रिंग है और ऑर्थो पोजीशन पे वो फ्यूज्ड है, राइट। नाउ इसका सोर्स क्या है नेप्थलीन का, मेनली इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कोल तार, और कोल तार में नेप्थलीन की कंसंट्रेशन होती है नियरली 6 to 7% ऑफ नेप्थलीन, यहीं से मेनली ये निकलता है। दूसरा थोड़ा बहुत जो है पेट्रोलियम में भी होता है, जस्ट जनरल कि कहाँ से आपको नेप्थलीन का सोर्स क्या है। देन इफ यू टॉक अबाउट की नॉमेनक्लेचर, या आप बोल सकते हो कि नेप्थलीन में नंबरिंग किस तरह से की जाती है नेप्थलीन रिंग में। सो वी स्टार्ट फ्रॉम दिस रिंग एंड यू कैन सी हियर वी हैव नंबर्ड इट 1 2 3 4 5 6 7 8। जब हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 से, तो हम एक रिंग से शुरू करेंगे उसके टॉप से, पर ऊपर और नीचे वाली जो फ्यूज्ड पोजीशन है उनको लास्ट में नंबर करेंगे, दे विल बी नंबर्ड एज 9 and 10, राइट। 1 2, आप दोबारा से भी इस तरह से कर सकते हो, यू सिंपली ड्रॉ 2 बेंजीन रिंग और आपने नंबरिंग कैसे करनी है, पहले फर्स्ट रिंग से 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर आपने ये जो फ्यूज्ड पोजीशन है इनको लास्ट में नंबर देना है, दीज आर 9 and the 10th पोजीशन। इसके अलावा इफ यू सी इट्स स्ट्रक्चर विल फाइंड दैट द पोजीशंस 1 4 5 and 8, ये जो पोजीशंस है नेप्थलीन में 1 4 5 and 8, these are equivalent position, ठीक है। इनको हम equivalent position बोलते हैं, A1 4 5 और 8, and they can be also designated by these alphabets, that is your alpha, beta and gamma. So 1 4 5 8 positions are also termed as alpha positions, अगर आपने alpha, beta, gamma की टर्म में लिखना है। In the same way 2 3 6 and 7, these are also equivalent and they are also termed as beta पोजीशंस, राइट। जो ऊपर वाली है, ऊपर नीचे वाली 1 4 8 and 5, ऊपर नीचे वाली अल्फा पोजीशंस होंगी, और आमने सामने वाली 2 3 और 6 और 7 ये क्या होंगी हमारी, दीज विल बी बीटा पोजीशंस। जो आपकी 9 और 10 पोजीशन बचकी उनको हम एक तरह से गामा पोजीशंस भी बोलते हैं, राइट। नाउ
अगर हमने इसके नॉमेनक्लेचर करना, ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, नॉमेनक्लेचर नहीं है इसके पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन के चैप्टर में, सिर्फ आपकी सिंथेसिस और रिएक्शंस हैं, बट सिंपल अगर फिर भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए क्या जो सिंपल आपके रूल्स हैं, एक दो रूल्स हैं। अगर आपके पास मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव ऑफ नेप्थलीन है, मीन्स एक ही ग्रुप अगर नेप्थलीन में लगा हुआ है, राइट, सो द पोजिशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट इज इंडिकेटेड आइदर बाई नंबर और बाई द लेटर अल्फा और बीटा, ठीक है। अगर एक ही ग्रुप है या तो 1 पे होगा या 2 पे होगा, तो उस केस में आप ये वाला भी यूज कर सकते हो, 1 2 के बेस पे भी उसका नॉमेनक्लेचर कर सकते हो, या अल्फा बीटा के बेस पे भी उसका नॉमेनक्लेचर कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ब्रोमीन जो है रिंग की फर्स्ट पोजीशन पे लगा हुआ है, सो वी आर नेमिंग इट एज 1 ब्रोमो नेप्थलीन, और वी कैन ऑल्सो नेम इट एज अल्फा ब्रोमो नेप्थलीन, राइट। इन द सेम वे अगर आपका जैसे सल्फोनिक एसिड ग्रुप सेकेंड पोजीशन पे है, सो वी कैन नेम इट एज 2 नेप्थलीन सल्फोनिक एसिड और बीटा नेप्थलीन सल्फोनिक एसिड, क्योंकि सल्फोनिक एसिड ग्रुप जो है सेकेंड या बीटा पोजीशन पे है, ठीक है। सो इफ देयर इज अ मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव, द पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट इज इंडिकेटेड by anyone, either you can use the numbers or you can also use the letters. But if the derivative of naphthalene is disubstituted or more highly substituted, then specifically in that case the position of substituent are generally indicated by the numbers only, not by the letters, ठीक है। जब आपका अगर आपका मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव नहीं है, इट इज डाई सब्स्टिट्यूटेड और हाई सब्स्टिट्यूटेड, ज़्यादा ग्रुप्स उसमें लगे हुए हैं, तो उस केस में हम जनरली नंबरिंग वाला जो सीक्वेंस है वही फॉलो करते हैं, और ये लेटर्स को जो है हम यूज़ नहीं करते हैं, राइट। सो यू कैन सी है, आप ये देख रहे हो यहाँ पे 2 बेंजीन रिंग फ्यूज्ड हैं, और क्लोरीन जो है कौन कौन सी पोजीशन पे लगा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फर्स्ट और फिफ्थ पोजीशन पे क्लोरीन लगा हुआ है। तो हम यहाँ पर इस तरह से नहीं कर सकते अल्फा एंड बीटा पोजीशन और अल्फा और अल्फा पोजीशन करके नहीं करेंगे इसका नॉमेनक्लेचर। हम यहाँ पर सिंपली हम यूज करेंगे नंबर्स को, तो इसका सिंपल जो नॉमेनक्लेचर है वो क्या हो जाएगा, 1,5 डाइक्लोरो नेप्थलीन, राइट। इन द सेम वे अगर नाइट्रो ग्रुप है तो उसका भी क्या हो जाएगा, 1,5 डाई नाइट्रो नेप्थलीन। सो ये आपके 2 रूल हैं जो आपने ध्यान में रखने हैं, कि अगर आपका मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव होगा नेप्थलीन का, तो आप उसमें अल्फा और बीटा और लेटर्स दोनों यूज कर सकते हो, बट अगर आपका डाई सब्स्टिट्यूटेड या हायर सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव है, यू हैव टू स्पेसिफिकली यूज द नंबर्स ओनली, राइट। इसके अलावा जो आपका आइसोमर्स की अगर हम बात करें, तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड नेप्थलीन डेरिवेटिव जनरली यू नो दैट इट कैन एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म, आइदर द अल्फा फॉर्म एंड और द बीटा फॉर्म, बीटा आइसोमर या अल्फा आइसोमर हो सकता है। और अगर आपका मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, या तो अल्फा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट जाएगा या बीटा पे जाएगा, तो अल्फा या बीटा आइसोमर होगा। बट अगर आपका डाई सब्स्टिट्यूटेड नेप्थलीन डेरिवेटिव है, तो इट कैन एग्जिस्ट इन 10 आइसोमेरिक फॉर्म, राइट। आपका डाई सब्स्टिट्यूटेड है तो कौन कौन सी पोजीशन पे जा सकता है, 1 2 पे, 1 3 पे, 1 4 पे, 1 5 पे, 1 6 पे, 1 7 पे, 1 8 पे। तो आपके 7 तो ये 1 पोजीशन के साथ हो गए, बाकी इक्विवेलेंट होंगे। और अगर सेकंड पोजीशन के साथ देखें तो 3 ही आइसोमर पॉसिबल होते हैं, 2 3, 2 6 एंड 2 7। सो डाई सब्स्टिट्यूटेड के केस में ओनली आपका अगर सब्स्टिट्यूएंट सेम है, आपके आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट है, सो ओनली 10 आइसोमर्स आर पॉसिबल। बट इफ अगर आपके सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट हैं, तो देन 14 आइसोमर्स आर पॉसिबल। जस्ट टू रिमेंबर दिस, इसको जस्ट आपने इतना दिमाग में रखना है, ज़्यादा इसके आइसोमर्स वैसे आपको आते नहीं हैं, आपने सिंपली इतना ध्यान रखना है कि अगर मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव होगा नेप्थलीन का, तो उस केस में सिर्फ अल्फा और बीटा आइसोमर बनेंगे, या तो आपका सब्स्टिट्यूएंट सिंगल जो अल्फा पे जाएगा या बीटा पे जाएगा। बट अगर आपका डाई सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव है और दोनों के दोनों सब्स्टिट्यूएंट अगर आइडेंटिकल हैं, तो आइसोमर का नंबर होगा 10। और अगर आपका सब्स्टिट्यूएंट जो है डिफरेंट है, यहाँ तो चलो सेम है, तो यहाँ पे भी 10 ही बनेंगे। बट अगर आपका ये सब्स्टिट्यूएंट एक सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट हो जाता है, तो उस केस में आपके जो आइसोमर्स हैं देयर नंबर विल बी 14, राइट। So this was the general you can say introduction about naphthalene. So we have studied naphthalene का molecular formula हमने देख लिया, source देख लिया, nomenclature हमने देख लिया। I hope आपको clear होगा। Now we move on to next important topic, that is the resonance structure of naphthalene. We are talking about the resonance structure of naphthalene. So naphthalene is
known to exist in the following resonating structure. Generally 3 resonating structures के naphthalene के exist करते हैं. Let me draw that. द फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको पता है, आपने बेंजीन रिंग में भी जब पाई बॉन्ड की आप पोजीशन को रखते हो तो आप अल्टरनेट पोजीशन में आते हैं, वो वन डबल सिंगल डबल सिंगल डबल इस तरह से आपके अल्टरनेट पोजीशन पे चलते हैं. तो यहाँ नेप्थलीन में भी हम उसी तरह से पाई बॉन्ड्स को रखेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, first bond here double bond, then next will be single, then after that again double bond, next will be single, then again double bond, single, double bond, single and double bond. So this is the first resonating structure of naphthalene. ठीक है, सिंपली आपने रिंग 1 से स्टार्ट किया, 1 पोजीशन से शुरू किया, एक डबल एक सिंगल, एक डबल एक सिंगल, एक डबल एक सिंगल, एक डबल और एक सिंगल. ठीक है, सो कितने 5 इसमें आपके 5 आपके बॉन्ड्स हैं. तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 5 2 ज़ा 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स. एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 पाई बॉन्ड है तो 5 पाई बॉन्ड में आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे? देयर विल बी 10 पाई इलेक्ट्रॉन. तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है आपका. दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप कैसे लिख सकते हो? जस्ट बाई दी मूवमेंट ऑफ दीज पाई बॉन्ड्स. ठीक है, सो लेट अस टेक कि हम रिंग 1 की जो पोजीशन है उसके जो पाई बॉन्ड है उनको हमने ऐसे ही रखा. वी हैव जस्ट मूव दी पाई बॉन्ड ऑफ दी सेकेंड रिंग. कैसे मूव किया? अगर आप इसको एरो के थ्रू ये वाला बॉन्ड इधर ले आओ, ये वाला इधर ले आओ, ये वाला इधर ले आओ. ठीक है, सो आपका क्या बन जाएगा? इधर ये बॉन्ड इधर आ गया, एक बॉन्ड आपका यहाँ पर आ गया और एक बॉन्ड आपका यहाँ पर आ गया. तो ये आपका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया नेप्थलीन का, जस्ट बाय मूविंग दी पाई बॉन्ड. राइट, देन थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप इसमें देख रहे हो कि अभी तक जो हमने दोनों स्ट्रक्चर लिखे उनमें जो रिंग 1 है उसमें 2 पाई बॉन्ड है और रिंग 2 में जो है 3 पाई बॉन्ड आ रहे हैं. ठीक है, सो थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप लिख सकते हो. आप जस्ट पाई बॉन्ड्स का जो नंबर जो रिंग 1 में आपके 2 है उसको रिंग 2 में कर दो और 3 पाई बॉन्ड जो है रिंग 1 में ले जाओ. तो क्या बन जाएगा हमारा? हम इसको इस तरह से लिख देंगे. ये जो 2 पाई बॉन्ड जो हमने पहले रिंग 1 रिंग में लिखे थे वो हम यहाँ से शुरू करेंगे. अब इधर से इधर रख देंगे, ये 2 इधर आ गए और नेक्स्ट जो अल्टरनेट पोजीशन पे रखते हुए नेक्स्ट पाई बॉन्ड जो है वो 3 पाई बॉन्ड जो है वो अगले रिंग में चले जाएंगे. तो ये सिंपली एक तरह से आपका उल्टा है टू दैट ऑफ दी फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से बिल्कुल उल्टा हो गया. ये रिंग पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में रिंग 1 में 2 थे, अब आपके रिंग 1 में 3 हो गए हैं. और पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में रिंग 2 में आपके 3 पाई बॉन्ड थे, अब जो सेकेंड रिंग है उसमें 2 पाई बॉन्ड हो गए. तो सिंपली आपने बॉन्ड्स को मूव कर दिया. सो यही आपके पॉसिबल स्ट्रक्चर है. इसके अलावा सो आप इसको जनरली आप देख सकते हो कि पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो दोनों रिंग में स्प्रेड हुए हैं. सो दिस विल बी कॉल्ड एज द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ नेप्थलीन. ठीक है, दोनों पाई बॉन्ड में आपके चार्ज जो है वो डिस्पर्स हो रहा है, डिलोकलाइज हो रहा है. ठीक है, सो दिस इज द सिंपलेस्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ नेप्थलीन. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द एविडेंसेस इन फेवर ऑफ दिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. कि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो हैं दे आर ट्रू, उसके फेवर में हमें कुछ एविडेंस देने कि हमने जो बनाए हैं वो सही है. सो दिस एविडेंस इन फेवर ऑफ दिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दैट कम फ्रॉम द एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज. पहला जो एविडेंस है एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी से हमें मिला है. और एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज में वी जनरली डू दी बॉन्ड लेंथ मेजरमेंट्स. राइट, सो नेप्थलीन में भी बॉन्ड लेंथ मेजरमेंट्स की गई एंड इट वाज फाउंड दैट अनलाइक बेंजीन ऑल दी कार्बन बॉन्ड लेंथ इन नेप्थलीन आर नॉट सेम. बेंजीन में तो तीनों पाई बॉन्ड्स या तीनों जो कार्बन बॉन्ड लेंथ होती है वो सभी की सभी जो है वो सेम होती है. बट in naphthalene all the carbon bond length they are not same and this was proved by X-ray diffraction studies and studies have revealed that, ये आपने नोट करना है कि नेप्थलीन में कार्बन बॉन्ड लेंथ जो है सारी की सारी सेम नहीं है. तो क्या वैल्यू है उनकी? इट हैज बीन रिवील्ड दैट द C1 C2 bond length is shorter and its value is near about 136.5 पिकोमीटर. C1 C2 बॉन्ड लेंथ इज शॉर्टर देन, किससे छोटी है? C2 C3 बॉन्ड लेंथ से. एंड C2 C3 बॉन्ड लेंथ जो आती है उसकी वैल्यू है 140.4 पिकोमीटर.
राइट। तो इट मीन्स C1C2 बॉन्ड लेंथ जो है, अगर हम तीनों स्ट्रक्चर्स में देखें तो उसके हिसाब से C1C2 बॉन्ड लेंथ जो है ओवरऑल एवरेज निकाल के C1C2 बॉन्ड लेंथ जो है वो छोटी है और C2C3 बॉन्ड लेंथ जो है वो लंबी है। सो अगर हमारे लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सही है तो इट मीन्स दे शुड बी वेरीफाइड बाय दिस बॉन्ड लेंथ मेजरमेंट, ठीक है। सो अब हम देखते हैं कि C1C2 बॉन्ड अगर छोटा हो रहा है तो क्या हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से इसको प्रूव कर सकते हैं। So if you see, this can be attributed to the fact that C1C2 bond, अगर आप देखते हो, it is a double bond in two resonating structure. आप structure 1 देखो, this is the structure 1. इसमें अगर आप C1C2 bond देखो, this is the C1C2 bond. It is a double bond in this structure. और अगर आप स्ट्रक्चर 2 भी देखते हो तो स्ट्रक्चर 2 में भी C1C2 बॉन्ड क्या है, यहाँ पर भी ये क्या है, डबल बॉन्ड है। जबकि स्ट्रक्चर 3 में ये C1C2 बॉन्ड जो है, इट इज अ, दिस इज हेयर, इट इज अ सिंगल बॉन्ड, राइट। सो C1C2 बॉन्ड जो है दो स्ट्रक्चर में इट इज कमिंग आउट टू बी अ डबल बॉन्ड एंड वन स्ट्रक्चर में जो C1C2 बॉन्ड है इट इज कमिंग आउट टू बी अ सिंगल बॉन्ड, ठीक है। ये हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोल रहे हैं। और अगर आप C2C3 बॉन्ड की बात करें, C2C3 बॉन्ड देखो आप, C2C3 बॉन्ड जो है स्ट्रक्चर 1 में सिंगल है, स्ट्रक्चर 2 में भी सिंगल है। तो इट मीन्स टू स्ट्रक्चर में इट इज अ सिंगल बॉन्ड एंड एक ही स्ट्रक्चर है, थर्ड स्ट्रक्चर, जिसमें कि ये डबल बॉन्ड है। सो नाउ यू नो दैट डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो डबल बॉन्ड की वो शॉर्टर होता है एज कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है। तो C1C2 बॉन्ड जो है दो स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड आ रहा है तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होनी चाहिए C2C3 के कंपेरिजन में, इट शुड बी स्मॉलर, ठीक है। तो दिस वो हमने एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी से प्रूव किया है। C1C2 बॉन्ड लेंथ इज शॉर्टर 136.5 है, जबकि C2C3 बॉन्ड जो है वो लंबा है। क्यों? क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड करेक्टर जो है वो ज्यादा है दो स्ट्रक्चर में और डबल बॉन्ड करेक्टर जो है वो थोड़ा कम है। सो दिस मीन्स दैट दीज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर ट्रू स्ट्रक्चर्स, ये एक्चुअल में एग्जिस्ट कर रहे हैं एंड दिस हैज बीन वेरीफाइड बाय द एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज, राइट। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर टू यू। Then the second evidence for these resonating structure, it comes from the resonance energy. It has been found that ये भी वैल्यू आपने लर्न करनी है, resonance energy of naphthalene is 255.2 किलोजूल पर मोल। नेप्थलीन की रेजोनेंस एनर्जी कितनी है? 255.2 किलोजूल पर मोल। जबकि बेंजीन की कितनी होती है, अगर हम बेंजीन से कंपेयर करें 150.6 और जनरली हम लेते हैं 151 किलोजूल पर मोल। बेंजीन की 151 है, ठीक है। इट मीन्स दैट रेजोनेंस एनर्जी ऑफ नेप्थलीन इज मोर देन दैट ऑफ द सिंगल बेंजीन रिंग, ठीक है। सिर्फ अगर नेप्थलीन मॉलिक्यूल की बात करें तो रेजोनेंस एनर्जी ऑफ नेप्थलीन इज मोर 255 than that of the single benzene ring, but it is less by 46 kilojoule per mole than twice the resonance energy of benzene, ठीक है। अगर रेजोनेंस एनर्जी को बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी को डबल कर दें, हम 2 टाइम्स कर दें क्योंकि इसमें दो रिंग है नेप्थलीन में, तो उस हिसाब से अगर हम इसको डबल कर दें तो जो इसकी बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी बन जाएगी 301 समथिंग के आसपास। तो दो बेंजीन रिंग की बेंजीन की जो ज़्यादा होती है, बट अगर सिर्फ एक सिंगल मॉलिक्यूल नेप्थलीन के देखें और उसको बेंजीन से कंपेयर करें तो आपकी नेप्थलीन की जो रेजोनेंस एनर्जी है वो ज़्यादा है, ठीक है। सो इट मीन्स अगर हम डबल के कंपैरिजन में कंपेयर करें कि नेप्थलीन में दो रिंग है, दो बेंजीन रिंग है एक तरह से, तो दो बेंजीन रिंग की रेजोनेंस एनर्जी नेप्थलीन में 255 है और बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी कितनी है, दो रिंग की 301, ठीक है। नेप्थलीन की रेजोनेंस एनर्जी है 255, ठीक है, जिसमें दो बेंजीन रिंग है और दो बेंजीन रिंग की अलग से निकालें जो कि 151 एक की होती है तो दो की कितनी निकलती है, 301, राइट। सो इट मीन्स दैट जिसकी जितनी ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी होती है उसकी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। इट मीन्स दैट
नेप्थलीन इज लेस रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड देन बेंजीन, क्योंकि नेप्थलीन की रेजोनेंस एनर्जी बेंजीन के 2 रिंग की रेजोनेंस एनर्जी से कम है, तो नेप्थलीन की रेजोनेंस स्टेबिलिटी कम हो जाएगी और बेंजीन की रेजोनेंस स्टेबिलिटी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। अगर बेंजीन की रेजोनेंस इसकी नेप्थलीन की रेजोनेंस एनर्जी अगर आपकी कम होगी, इसका मतलब क्या है कि नेप्थलीन की स्टेबिलिटी भी कम होगी एज कंपेयर टू बेंजीन। और जब स्टेबिलिटी कम होती है तो आपको पता होगा रिएक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है। सो नेप्थलीन इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन एंड दिस ऑब्जर्वेशन दैट कीप इन माइंड दैट नेप्थलीन इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन, ठीक है, नेप्थलीन की रिएक्टिविटी ज्यादा है बेंजीन से। ये ऑब्जर्वेशन कहाँ से हम इसके सपोर्ट मिलता है? दिस इज ऑब्जर्वेशन इज सपोर्टेड बाय द फैक्ट दैट नेप्थलीन अंडरगोज एडिशन रिएक्शंस मोर रेडिली देन बेंजीन। बेंजीन के कंपैरिजन में नेप्थलीन जो है वो एडिशन रिएक्शन जल्दी करती है। क्यों? क्योंकि नेप्थलीन की स्टेबिलिटी कम है, उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। हमेशा रिएक्टिविटी स्टेबिलिटी प्रिंसिपल आपने याद रखना है, जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी उतनी कम रिएक्टिविटी, या उल्टा बोल सकते हो, जितनी ज़्यादा जितनी कम स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा रिएक्टिविटी। तो नेप्थलीन की स्टेबिलिटी कम है क्योंकि इसकी रेजोनेंस एनर्जी कम है एज कंपेयर टू बेंजीन। तो जब इसकी रेजोनेंस एनर्जी कम होगी, इसकी स्टेबिलिटी कम होगी, तो इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, तो ये ज़्यादा रिएक्शंस देती है। और इसको हम कहाँ से सपोर्ट करते हैं? फ्रॉम दी एडिशन रिएक्शंस, कि नेप्थलीन जो है ज़्यादा इजीली एडिशन रिएक्शन दे देती है एज कंपेयर टू बेंजीन। सो ये 2 नंबर का कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, व्हाई नेप्थलीन अंडरगोज एडिशन रिएक्शंस मोर रेडिली देन बेंजीन, देन देयर यू हैव टू गिव दिस एग्जाम्पल और यू हैव टू जस्टिफाई इट विद द हेल्प ऑफ दिस रेजोनेंस एनर्जी, कि नेप्थलीन की रेजोनेंस एनर्जी जो है 255 है, जबकि 2 बेंजीन रिंग की जो रेजोनेंस एनर्जी है वो 301 है। 2 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि नेप्थलीन में भी 2 बेंजीन रिंग है, इसलिए हमने बेंजीन की जो रेजोनेंस एनर्जी है वो भी डबल कर देनी है और फिर उससे कंपेयर करना है। क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ नेप्थलीन, राइट? आई होप दिस ऑल मस्ट बी क्लियर टू यू. After doing the resonance structure, we move towards the orbital structure of naphthalene. We have to talk about the molecular orbital picture of naphthalene. So according to molecular orbital theory, I have earlier written the formula of naphthalene, that is its molecular formula was C10H8, right? So according to molecular orbital theory, all the 10 कार्बन एटम्स ऑफ नेप्थलीन, इनकी जो हाइब्रिडाइजेशन है ऑल दी 10 कार्बन एटम्स की, वो क्या है? sp2. ऑल दी 10 कार्बन एटम्स इन नेप्थलीन आर इन sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट, राइट? कार्बन के पास, कार्बन का जनरली आपको पता है जो s में 1 इलेक्ट्रॉन होगा और p में 2s2 2p2 होता है, और जब कार्बन एक्साइटेड स्टेट में चली जाती है तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाते हैं, 1 s में और 3 p में। पर हम क्या बोल रहे हैं? हाइब्रिडाइजेशन जो है कार्बन में sp2 है, 1s and 2p, दे आर गेटिंग हाइब्रिडाइज्ड। सो एक जो p ऑर्बिटल है दैट इज लेफ्ट अनहाइब्रिडाइज्ड। दिस इज द केस इज ऑल द 10 कार्बन एटम। ये तो हमने एक कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन की बात की ना, ये सेम हाइब्रिडाइजेशन है बाकी सारी की सारी। अगर आप नेप्थलीन के 2 रिंग देखो ये, तो सभी में सभी कार्बन एटम्स पे जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज sp2 sp2 sp2। सो इफ हाइब्रिडाइजेशन इज sp2, इट मीन्स ईच कार्बन एटम कितने बॉन्ड बनाएगी? sp2 में कितने सिग्मा बॉन्ड बनेंगे? देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ 3 सिग्मा बॉन्ड, देयर विल बी 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। सो ईच कार्बन एटम इज फॉर्मिंग 3 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है? 2 जो सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं वो, जैसे अगर मैं यहाँ पे एक कार्बन लिख लूँ, 2 सिग्मा बॉन्ड बनाएगी वो 2 एडजेसेंट कार्बन एटम के साथ। ये आपके 2 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे 2 एडजेसेंट कार्बन एटम्स के साथ बन रहे हैं। सो 2 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल of each carbon, they are used in forming 2 sigma bond with the adjacent carbon atom, and 1 sp2 or the third one is used in forming sigma bond with the hydrogen atom. This is the case with all the 10 carbon atoms, right? सभी 10 की 10 कार्बन एटम में सेम हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। sp2 के अकॉर्डिंगली 3 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, 2 जो है हर एक कार्बन एटम जो है वो 2 कार्बन एटम के साथ बनाएगी, और तीसरा जो वो हाइड्रोजन के साथ बनाएगी, एक्सेप्ट योर कार्बन एटम एट C9 एंड C10, जहां पर जो कार्बन है हाइड्रोजन कोई भी नहीं है। तीनों की तीनों जो सिग्मा बॉन्ड है वो 3 एडजेसेंट कार्बन एटम के साथ बन रहे हैं। ये जो कार्बन एटम है ये वाली
एक सिग्मा बॉन्ड इधर बना रही है, एक सिग्मा बॉन्ड इस कार्बन के एटम और एक सिग्मा बॉन्ड इस कार्बन एटम के साथ बना रही है, ठीक है। सो नेप्थलीन जो है इट इज अ, क्योंकि साइमल्टेनियसली जो है एक कार्बन एटम जो है एक ही प्लेन में दो कार्बन के साथ और एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रही है, सो इट मीन्स नेप्थलीन इज अ प्लेनर और द फ्लैट मॉलिक्यूल है आपका, ठीक है। एंड नाउ वी आर लेफ्ट विद वन अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल। दो तीन तो हमने यूज कर लिए तीन सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए। अब हर एक कार्बन के एटम के पास ये जो पी ऑर्बिटल है इट इज लेफ्ट अनहाइब्रिडाइज्ड। सो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल वी नो दैट दे ओवरलैप साइड वाइज, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड में हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, पाई बॉन्ड में आपकी साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। सो ये सारे के सारे जो 10 कार्बन एटम के अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल हर एक कार्बन के ऊपर एक एक अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल बच जाएगा। दे ओवरलैप साइड वाइज एंड साइड वाइज ओवरलैपिंग रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, ठीक है। सो देयर विल बी अ क्लाउड ऑफ 10 pi electrons above and below the plane of the ring. So let me draw that how we are going to show this. Just a minute. So we can show here. ये आपने बीच में लिखने हैं, मेरा थोड़ा ये पेंट में ड्रॉ हुआ है तो ये बीच में नहीं आ पाएगा, तो मैं इसको थोड़ा ऊपर ऊपर लिख रही हूँ। आपने एग्जैक्टली जो है कार्बन एटम्स को बीच में लिखना है इनके, यहाँ पर दीज आर 10 कार्बन एटम्स। ये नेप्थलीन की कार्बन एटम्स आ गई, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड जो आपको दिख रहे हैं ये एक सिग्मा बॉन्ड बना रही है, इस तरह से दूसरा सिग्मा बॉन्ड, एक कार्बन एटम जो 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगी, तीसरा किसके साथ बनाएगी ये इस तरह से, तीसरा सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनेगा। ऐसे ही हर एक कार्बन एटम सिग्मा बॉन्ड्स बने हुए हैं कार्बन के साथ, हाइड्रोजन के साथ हम शो कर देंगे। ये बाहर को चला जाएगा थोड़ा सा आपको, आई होप, ठीक है। तो हर एक कार्बन एटम के साथ जो है हमने 3 सिग्मा बॉन्ड शो कर दिए। वन सिग्मा बॉन्ड इज दिस वन, अदर इज दिस वन एंड थर्ड वन। हर एक कार्बन एटम जो है इस तरह से 2 कार्बन और एक हाइड्रोजन के साथ 3 सिग्मा बॉन्ड बना रही है। और इसके अलावा अब हमने शो करने हैं ईच कार्बन एटम इज लेफ्ट विथ अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल। सो हर एक कार्बन एटम के ऊपर हम अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल शो करेंगे। दीज विल ओवरलैप साइड वाइज ईच कार्बन एटम, ठीक है। हर एक कार्बन एटम की sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसलिए 3 सिग्मा बॉन्ड बनाने के बाद sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को यूज करने के बाद ईच कार्बन एटम इज लेफ्ट विद वन अनहाइब्रिडाइज्ड, दिस इज योर अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन। तो कितने अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल हैं? 10 कार्बन एटम है, तो 10 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल और हर एक के पास एक ही कार्बन एटम है, तो टोटल कितने आपके इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 10 कार्बन 10 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन, सो देयर विल बी 10 पाई इलेक्ट्रॉन। और इनकी ओवरलैपिंग कैसे शो करेंगे हम? इस तरह से जो ऊपर वाली लोब्स हैं, ऊपर वाली लोब्स के साथ ओवरलैप करेंगी, साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ए क्लाउड ऑफ 10 पाई इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही नीचे वाली लोब्स जो हैं वो नीचे वाली लोब्स के साथ ओवरलैप करेंगी, ठीक है। इसी तरह से नीचे जो नीचे वाला रिंग है उसकी लोब्स भी पहले हम उनकी ऊपर अपर लोब्स को ओवरलैप करवाएंगे, अपर लोब्स के साथ साइड वाइज ओवरलैपिंग है, और नीचे वाली लोब्स को सेकेंड रिंग की नीचे वाली लोब्स के साथ इस तरह से हम ओवरलैपिंग शो करेंगे। सो अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो रिजल्टिंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन रहा है ओवरलैपिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन से, दैट इज गिविंग यू अ फिगर ऑफ 8 शेप की एक फिगर बन रही है। सो देयर इज अ पाई क्लाउड गिविंग अ शेप ऑफ 8, तो हम उसको इस तरह से शो कर सकते हैं 8, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं इस स्ट्रक्चर को। इस तरह से आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड का जो शेप है, ठीक है, वो इस तरह से हमें दिखती है, 8 की तरह दिखती है हमें ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपका जो दिखता है हमें, राइट। और इसी तरह से नीचे को भी, नीचे की तरफ से भी इस तरह से दिखेगा। सो ओवरऑल जो है ये 8 की शेप का जो है ये पाई क्लाउड आपका बन रहा है। सो नेप्थलीन में जो है देयर इज अ delocalized pi cloud of 10 pi electrons above and below the plane of the ring is formed and it has a shape of to that of the number 8 की तरह दिखता है। सो अगर हम इसकी एरोमेटिसिटी की बात करें हक्कल रूल के अकॉर्डिंगली, सो हक्कल रूल के अकॉर्डिंगली आपको पता है सिस्टम कंटेनिंग
4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, वेयर n जो है आपका 1 से शुरू हो जाता है, 1 2 3 4, ठीक है। सो अगर आपका 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन को ओबे करता है और फ्लैट और प्लेनर है तो आपका कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक होता है। सो अगर आप नेप्थलीन में हमारे पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, वी हैव 10 पाई इलेक्ट्रॉन। सो हम देखेंगे क्या 10 पाई इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम एरोमेटिक होता है। सो हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं नेप्थलीन में। अगर आप यहाँ पर एन की इसमें जो 4n + 2 में अगर आप n की वैल्यू 2 डाल दो, ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा हकल रूल के अकॉर्डिंग 10 पाई इलेक्ट्रॉन। तो इट मीन्स हकल रूल में 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम जिसके पास होता है वो एरोमेटिक होता है। एंड 2 के लिए आपका जो हकल रूल की वैल्यू है वो कितनी आ रही है 10। तो और नेप्थलीन में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। सो देयरफॉर इट इज एन एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। 2 बेंजीन रिंग है इसमें और बेंजीन रिंग भी एरोमेटिक होती है। तो ये भी आपका कंपाउंड जो है एरोमेटिक है बिकॉज ये हक्कल रूल से जस्टिफाई हो रहा है। हक्कल रूल में अगर ये 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का रूल ओबे करता है और साथ में फ्लैट और प्लेनर हो तो कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक होता है। सो दिस इज एरोमेटिक बिकॉज नेप्थलीन इज हैविंग अ सिस्टम ऑफ 10 पाई इलेक्ट्रॉन, और 10 पाई इलेक्ट्रॉन जो है हक्कल रूल में अगर आए तो इट इज अ सिस्टम, इट इज एन एरोमेटिक सिस्टम, राइट। सो दिस इज दी all about your molecular orbital structure of नेप्थलीन। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर टू यू। कोई डिफिकल्टी आती है आपको समझने में तो आप मेरे से कभी भी पूछ सकते हो। देन नेक्स्ट वी मूव ऑन टू, आपका ये टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा, फिर वीडियो का साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ऐसा करते हैं हम इसकी जो सिंथेसिस ऑफ नेप्थलीन है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। और आपको कोई भी दिक्कत आती है हम बीच में एक बार हफ्ते में 1-2 बार जो है ऑनलाइन क्लास भी करेंगे। तो जो भी क्वेरीज होंगी आप अपनी नोट करके रखनी है और फिर ऑनलाइन क्लास में पूछ लेनी है, या आपने मुझे पर्सनली व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर। वी हैव स्टडीड अबाउट what are polynuclear hydrocarbons, right? And that is the hydrocarbons which have more than one aromatic ring in their molecule, they are called polynuclear hydrocarbon. We have studied about their classification, that is there are of 2 types, where the 2 aromatic rings they are either joined through a single bond or through some other carbon atom, or the second category where the rings are not isolated but they are fused by sharing a pair of ortho carbon atoms. So we have discussed in them the naphthalene, the second one where the 3 rings are fused linearly, that is the anthracene, and where the rings are 2 rings are fused in a linear way and the third one is fused in a angular way, and that is called phenanthrene, right? So I told you that this is the most important category of polynuclear hydrocarbon which we will study, राइट। सो फर्स्ट जो हमने स्टडी किया आज थोड़ा, दैट इज द नेप्थलीन। नेप्थलीन से हमने स्टार्ट किया। सिंपलेस्ट पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है आपका C10H8, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया। नॉमेनक्लेचर मैंने आपको बताया, नंबरिंग से भी कर सकते हो आप, 1 2 3 4 से भी कर सकते हो, या अल्फा और बीटा से भी आप इसकी पोजीशन शो कर सकते हो। फिर हमने बताया अगर मोनो सब्स्टिट्यूटिव डेरिवेटिव है तो आप 1 2 3 4 या अल्फा बीटा कुछ भी यूज कर सकते हो, बट अगर आपका डाई सब्स्टिट्यूटिव डेरिवेटिव होगा तो हम सिर्फ नंबर ही यूज करेंगे। फिर हमने रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ नेप्थलीन की बात की, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखे हमने। सिंपली हमने पाई बॉन्ड्स को अल्टरनेट पोजीशन पे रख के और फिर उनको मूव करवाते रहे तो वी गेट 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और उसके बाद हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के एविडेंस दिए। एक हमें मिला एक्सरे बॉन्ड लेंथ मेजरमेंट से और दूसरा हमने रेजोनेंस एनर्जी से एविडेंस दिया, राइट। उसके बाद हमने we talked about the orbital molecular orbital structure of naphthalene, जिसमें हमने बताया कि नेप्थलीन में जो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन है हर एक कार्बन की। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन अगर हर एक कार्बन की है तो हर एक कार्बन जो है वो 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगी और एक p ऑर्बिटल जो है अनहाइब्रिडाइज्ड रह जाएगा ऑन ईच कार्बन, सो दैट विल टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। सो देयर आर 10 pi electrons, so it is forming a cloud of 10 pi electron above and below the plane of the ring, and these pi electron ये ऊपर वाली लोब्स को ओवरलैप करके ये आपका पाई क्लाउड बनेगा, यहाँ की नीचे वाली लोब से ये वाला पाई क्लाउड बनेगा, और इसी तरह से ये फर्दर जो आपकी नीचे वाली ओवरलैप हो रही हैं वो यहाँ पर आपकी शो होंगी। तो एक तरह से आपका 8 का एक पाई क्लाउड दिखता है। सो ये एरोमेटिक होता है, वो हमने बताया फ्रॉम द बेसिस ऑफ हक्कल रूल, राइट। So this is sufficient for today. If you have any queries, you can ask anytime on my WhatsApp number. Thank you. Have a nice day. God bless you.